It's supposed to be till 1:15. हाँ, so ठीक है ना, so we have time थोड़ा सा, तो I think we will have to be done by this question then. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं and then let me just check. ठीक है, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है. आरोग्यदीप यस, कौशिकी यस, सलोनी यस, नवाज यस, लास्ट आंसर नहीं नवाज, लास्ट ऑप्शन. ओके, एंड और कौन था? Yes, Ankita also has given the right answer. Okay, so have you all understood what is a paradox in this situation? The paradox is like if you fast, your water retention condition can be mitigated, can be improved to an extent. But despite that, fasting is not given as a prescription to the patients suffering from water retention. Why is it so? Why it is not given? Only option 5 justifies it, because once you stop the fasting, okay, and even if you break the fasting by taking a small fraction of meal, that water retention will come again in full force. Despite fasting, helps people suffering from water retention, it's not a permanent solution. Hence, it is not an option. Only medicines are given as a prescription for water retention. So hence option 5 is the correct answer. If you look at option 4, the dramatic shifts in water retention connected with fastings have, all that, still not addressed. Aggressive information de raha hai. Option C is talking about the side effect of fasting. But whether this thing, water retention or not given, not taken care of. And, getting paid more difficult. It's absurd. Okay. That challenge is bata raha, you cannot put them to fasting. And again, look at option 1. For a small percentage of patient, fasting induces whatever. Okay, this is also just an information. Just talks. So only option 5 says that bhai fasting. Hello, ma'am. Hello. Hello. Yeah. Why? Because अगर एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. हाँ, कौन बोल रहा है? Yes, Nawaz, just give me. Ma'am, is it? Hello, ma'am. हाँ, तो I just got a message. Problem on your side or mine? 1 minute. Hello, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉब्लम हो रही है. I have full connection. अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रुको. हाँ मैम, कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे आप. हाँ. मेरा फिर से बताऊंगी, उसमें टेंशन नहीं है. तो अभी देखो, अभी सुनाई दे रहा है क्या? कनेक्टिविटी तो मेरा इशू नहीं है यार. हाँ मैम, अभी आ रहा है. It's breaking badly. Okay, it's breaking. अच्छा. क्या प्रॉब्लम है यार, आज का दिन खराब है यार. Can you hear me now? No, ma'am. हाँ मैम, बोलिए. Guys, एयरप्लेन करो एंड रिफ्रेश करो. मेरा नेटवर्क तो बराबर है यार, मैं क्या करूं बताओ. टेक्नोलॉजी पीपल टेल मी. Some of us आ रही है, जा रही है. some of us yeah. Airtel में Ankita, are you on Airtel? No, I'm on local broadband. I am on Airtel and I have the highest internet speed. Yes, Ankita, just restart your router. So my router is fine because everything else is working on my computer. So this happens sometimes that it shows that you can access YouTube, you can access everything, but sometimes it happens. मेरे साथ भी होता है कभी-कभी. चलो ठीक है. Ma'am, if I don't understand something, I will explain it to you 10 times. That is not an issue. But problem ये है कि मेरी आवाज अब बराबर है या नहीं है. हाँ, अभी ठीक है. बोलिए. हाँ, अभी ठीक है ना. हाँ, सॉफ्टवेयर का इशू है कुछ. मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ ये सवाल, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिए, और अगर नहीं आ रहा है ना समझ में, तो मुझे फट से बोल देना, NNN यहाँ पे लिख देना, तो मैं फिर से स्टॉप हो जाऊंगी अगर आवाज में कुछ इशू है तो. ठीक है, स्टार्ट करें. यस ओके. देखो, तो अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या है कि फास्टिंग एक सोल्यूशन है वाटर रिटेंशन को कम करने का. तो जो लोग पेशेंट्स जो वाटर रिटेंशन से गुजर रहे हैं वो फास्ट करते हैं, तो उनकी वाटर रिटेंशन की तकलीफ थोड़ी बेटर हो जाती है.
ठीक है, ठीक होने लगती है, थोड़ी ठीक हो जाती है. बट इसके बावजूद भी दिस फास्टिंग इज नॉट गिवन एज अ प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वाटर रिटेंशन. व्हाई इज दैट? So this is a contrasting situation. The only solution to this particular situation is that if you give fasting as a prescription to the patients suffering from water retention, what will happen? That will not be a permanent solution. Because as soon see, fasting is not a permanent thing, right? आप आज कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते. So and once that is broken, when I say broken by even a fraction of meal, even a small meal, what will happen? The entire water retention will rebound, and it will rebound in full force. So that is why fasting is not given as a prescription. Only medicines are given. Only option 5 gives a fantastic medical justification as to why fasting solve करता है issue, तो भी उसको prescription में क्यों नहीं दिया जाता. बाकी सारे ही गूगली ऑप्शंस हैं. आपको कोई भी और ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगी वो क्यों आंसर नहीं है. बट अब तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फटाफट बताइए. मैम एक बार पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए ना, क्या है पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट करूं? ओके, पैराग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन है सब लोग के लिए है ये कि जो पेशेंट्स हैं कुछ जो वाटर रिटेंशन की तकलीफ से गुजरते हैं. आई होप यू ऑल नो वाटर रिटेंशन इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम. इट कॉजेज लॉट ऑफ ओबेसिटी. ओके, और जब वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम से वो जो गुजर रहे हैं वो क्या करते हैं, जब फास्ट करते हैं, जब थोड़ा कम खाते हैं या एक मील स्किप करते हैं, जो फास्टिंग जिसे हम बोलते हैं, जब वो उपवास करते हैं तब उनकी सफरिंग थोड़ी ठीक होने लगती है, तो उनका वाटर रिटेंशन का इशू थोड़ा बेटर होता है, मतलब कम होने लग जाता है. क्यों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फास्टिंग इज गिविंग सम काइंड ऑफ सोल्यूशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वाटर रिटेंशन, है ना. इसका मतलब ये हुआ. बट फिर भी जो डॉक्टर्स है, इट इज नॉट गिवन एज अ प्रिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वाटर रिटेंशन. ऐसा क्यों? वाटर रिटेंशन साइड मेडिसिन ही देते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, फिर भी वो लोग मेडिसिन देते हैं वाटर रिटेंशन के पेशेंट्स को, बट फास्टिंग का सोल्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करते. क्यों? क्योंकि जब फास्टिंग टूट जाता है एक छोटे से भी मील से, तो क्या हो जाता है, पूरा वाटर रिटेंशन फुल फोर्स में वापस आ जाता है. So because it is not giving a permanent solution, in fact, it is very dangerous because rebounding is anyway dangerous. Hence, option 5 क्या होता है, आंसर बन जाता है. और कुछ बताऊं फिर से? मैम ये वाटर रिटेंशन का डिजीज है, क्या है ये? अच्छा, वाटर रिटेंशन बेसिकली इट्स नॉट अ डिजीज, बट कैसा होता है ना, जैसे हमारा बहुत ही लाइफस्टाइल, जैसे अभी नॉर्मल मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या हो गया, सब लैपटॉप पे लगे रहते हैं, हार्ट मतलब फिजिकल मोबिलिटी इतनी रहती नहीं है, वर्कआउट सब लोग करते नहीं है, तो क्या होता है, पानी अंदर रिटेन करने लगता है, बॉडी पानी को रिटेन करता है. और पानी को बॉडी रिटेन कब करता है, जब हम एडिक्वेट पानी पीते नहीं है. ओके, तो जब पानी बहुत ज्यादा शरीर के अंदर बनने लगता है तो शरीर फूलने लगता है, बढ़ने लगता है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज इन्फेक्ट होने लगते हैं. कुछ बहुत आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, बहुत चीजें होती है वाटर रिटेंशन से. तो वाटर रिटेन नहीं होना चाहिए बॉडी में, ठीक है. और वाटर रिटेन नहीं होने की वजह से यू नीड टू डू वर्कआउट एंड यू नीड टू हैव गुड वाटर, गुड लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे. ओके मैम, ठीक है, क्लियर है. अब आगे बढ़े. और कोई ऑप्शन में किसी को कंफ्यूजन है कौशिक की कि ये होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा कुछ है तो बता दीजिए. नहीं मैम. ठीक है, ओके ना, आगे बढ़ते हैं. यस, दिस वन. Just give me a minute. I am just putting my camera off. Okay. Okay, Aragyadeep has given the answer.
Fantastic, Aragyadeep. Fantastic, Ankita. Okay, Pavitra. Okay, Utkarsh. ओके नेहा, चलो सभी का सही आंसर है वैसे। क्यों मैंने फैंटास्टिक बोल दिया आरोग्यदीप और अंकिता को, इसलिए सबने कॉपी कर लिया, ऐसा क्या? हाँ उत्कर्ष, पवित्रा, ऐसा तो नहीं है ना? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज इट? नो मैम। ओके, सो उत्कर्ष एक्सप्लेन व्हाट इज द पैराडॉक्स हियर। I told no, for that I didn't copy. I did not copy. I understood. You said no, that you did not copy. So that is Here I'm it is saying asking that when while the tracker was going, the first mile post saw 41, and on its behind it was written 43. So the next one should have written 42, but it was written 40, and on its behind it was written 44. So it was clearly mentioning that the miles indicate end of the path, not from the beginning. When I say end of the path, इसका क्या मतलब हुआ? Towards the back side. Which means reverse. If I reach, if I have reached somewhere where I see this post, so many. So when I say 41, तो इसका मतलब ये होता है कि 40 more to travel. Miles to go. हाँ. Yes, 40 more to travel. Okay, इसका मतलब ये होता है. So which means what? The facing numbers indicate miles to the end of the path and not from the beginning of the path. ठीक है, ये बहुत easy था. किसी को confusion है इसमें? Clear ना? सब लोग yes yes लिख दो अगर if it is clear please. Kaushiki, have you understood? Okay, Kaushiki has understood. Nawaz has understood. ठीक है, great. So we'll move ahead now. This was a very simple one actually. Okay, this one. Issues center. Okay, Nawaz, Utkarsh, Ankita, yes. Yes, Aragyadeep, Kaushiki, fantastic. Good going.
सभी ने सही जवाब दिया है, so I believe this is very much clear. Okay, who will explain this? कोई फट से explain कर देगा so that I am convinced कि yes, you all have understood it. Aragyadeep, would you like to take? Yes, ma'am. Ma'am, actually, it's happening that if the population, for example, is growing by 50%, and even if the number of people are remaining same, the overall percentage is decreasing. That's the explanation. I mean, the overall percentage is decreasing because the number of people are remaining same, but the base, that means the population, is increasing. Okay, ठीक है, तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है. अभी टाइम क्या हुआ है बाय द वे? 1:28 हुआ है ना. We'll finish this question and we'll say goodbye to each other because इसका प्रॉब्लम क्या है? What is the paradox over here that this committee, this government is saying that they claim that poverty, the people below the poverty line has reduced. Okay, poor जो भी number of poor people है या poverty का जो rate है वो reduce हो गया है पिछले 20 सालों में. That's what they are saying. Okay, but actually क्या है कि जितना था उतना ही रह गया है. Okay, ऐसा है नहीं. Recent survey क्या बता रहा है कि भाई कुछ reduce नहीं है हुआ है, जितना था वही रह गया है. ये हो गई पैराडॉक्सल सिचुएशन. अब ऐसा कब हो सकता है? जब टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई है. जैसे एक छोटे शहर में 100 लोग रहते हैं से फॉर एग्जांपल, ओके, बट 10% ग्रोथ हो गया और उसमें से 10 से फॉर एग्जांपल 10 बहुत गरीब है. ओके, 100 में से 10 गरीब है, तो टोटल पॉपुलेशन 100 है, 10 गरीब है, 90 ठीक है. अब वो पॉपुलेशन अगर 10% से बढ़ जाता है तो कितना होता है? 110. तो भी गरीब तो उतने ही रहे, है ना. तो यही एक रीजनिंग है जो ऑप्शन 3 आपको बता रहा है दैट दिस टोटल पॉपुलेशन हैज ग्रोन ओवर द लास्ट 20 years, बट पीपल पॉवर्टी लाइन तो वही अनचेंज्ड ही हो गई है. वो लोग क्या समझ रहे हैं कि 110 में से 10 उनको कम लग रहा है वो रेट. ओके, बट वो 10 लोग पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है, तुमने उनके लिए आज भी कुछ नहीं किया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, हेंस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. दैट्स ऑप्शन सी. ठीक है, किसी को भी इशू है इसमें से? बाकी सब कुछ बकवास बताया जा रहा है. इट्स ऑल टोटल बकवास. ऑप्शन 1 is talking about assistance and schemes, standard of living. Option B is talking about, it's totally outright reject. It's out of context. Okay, so this was again बहुत ऑप्शन फ्रेंडली आंसर था ये, क्वेश्चन था ये. हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कुछ और इसमें कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स अभी तक? नो ना नवाज? ओके, अंकिता, कौशिकी, चंदन, तो फ्रेंड्स आप लोग का अभी कोई और क्लास है तो इसी पे हम एंड करते हैं. हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है. मेरे ख्याल से 2-3 सवाल रह गए हैं, वो प्लीज आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि हमारा अगला सेशन उसमें वेस्ट ना हो. हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में एंड वी विल टेक समथिंग न्यू. ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय योर संडे एंड हैप्पी स्टडिंग. सो आई विल एंड द क्लास. बाय. Thank you, ma'am.